In the previous class, we were done with the blood clotting mechanisms, right? We discussed about the injured tissue, blood platelets, how blood clotting occurs, and I also told you that we do have some clotting factors as well, right? How many clotting factors do we have inside our body? Tell me a rough number. I gave you a number in the last class. Sheetal, batao. Hi Adil, good morning. Good morning, ma'am. All right, I thought तुम्हारे phone का issue है, तुम आओगे नहीं आज class में. All right, chalo. So I told you we do have 13 clotting factor. ठीक है, this is a cascade of reaction. I told you this thing as well. कि clotting की जब हम बात करते हैं, this is a whole series of reaction जो एक के बाद एक active हो जाते हैं. कि whenever there is release of thromboplastin from the tissue injury, from the site of injury, ठीक है, it initiates a cascade of reaction. एक के बाद एक सारे reactions हमारे चलना शुरू हो जाते हैं. बहुत सारे clotting factors होते हैं. जैसे if you remember, I told you what is serum. Can anyone tell me what is serum? What is serum? Plasma Adil. without proteins. Absolutely no, not plasma without protein, plasma without a blood clotting factors. ठीक है, तो plasma minus clotting factor. ठीक है, that is serum. तो यानी we do have clotting factor within our blood. कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके नाम हम लोग डिस्कस करेंगे. वी डोंट हैव एनी नीड, अभी इस लेवल पे हम लोग उनका रोल बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर नेम. एटलीस्ट हमें नेम पता होने चाहिए. सो लेट्स जस्ट राइट काउंटिंग इन रोमो फ्रॉम 1 to 13. ओके, सो I just wrote the number here and now let's discuss about their name. First is fibrinogen. क्या हमने fibrinogen के बारे में last class में पढ़ा था? Yes or no? Fibrinogen gets converted into fibrin, right? याद है सबको? If yes, give me a very quick thumbs up, everyone. If you remember name of fibrinogen, that was the last reaction we discussed, right? Fibrinogen gets converted into fibrin, which further with the blood corpuscles make the firm clot, right? So second, let's first blood factor is fibrinogen. Second, we have prothrombin. We also discussed about prothrombin. मुझे बताओ फटाफट prothrombin किस में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, थर्ड फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना? इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है. फोर्थ फैक्टर आई टोल्ड यू अबाउट अ मिनरल, एन आयन, जो इस पूरे प्रोसीजर में रोल प्ले करते हैं. कैन यू टेल मी अबाउट दैट आयन? कौन सा आयन प्ले करता है रोल? Calcium. कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम. तो द फोर्थ फैक्टर हियर इज कैल्शियम. ऑलराइट, प्रोएक्सिलरिन. ठीक है, प्रोएक्सिलरिन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबाइल फैक्टर. लेबाइल फैक्टर. ठीक है, दिस इज द फिफ्थ वन. लेट्स गो टू द सिक्स्थ वन, दैट इज प्रोकन्वर्टिन. प्रोकन्वर्टिन. ठीक है, सेवेंथ. नाउ वी आर एट द सेवन. Sorry, sixth one is the hypothetical one. I told you we have 13 number, but at the end we have 12 factors. ठीक है, so the sixth one here, this is the hypothetical one. ठीक है, hypothetical factor, right? That is the activation product of 5. Hypothetical factor is why this is activation product of fifth one. ठीक है, now the seventh one. Seventh is proconvertin. Okay, eighth factor. Eight is anti-hemophilic. There is a disease called as hemophilia, right? Anti-hemophilic factor हमारे पास होता है anti-hemophilic factor. ठीक है, AHF. Now the ninth one is now we are going to find some similar names here. This is also anti-hemophilic factor. All right, ninth one is also an anti-hemophilic. There are certain similarities. ठीक है, ninth one is called as anti-hemophilic factor B. ठीक है, hemophilic factor B. और ninth का एक और नाम होता है जो आपको याद रखना है, that is Christmas factor. It is also called as Christmas factor. ठीक है, so now we discussed about these 9
clotting factors which involves in the mechanism of clotting. Let's move forward to the 10th one. 10th is a good name, तुम्हें आराम से याद हो जाएगा, that is Stewart power. Stewart power factor. ठीक है. Now the 11th one. 11th one is अभी हमने एंटी हीमोफिलिक पढ़ा, एंटी हीमोफिलिक बी पढ़ा. 11th is एंटी हीमोफिलिक सी. ठीक है. Now the 12th one. 12th one is Hageman factor और glass factor. Hageman और glass factor is 12. Now we are left with the 13th one. 13th one is an important factor because जो fibrin होता है, it has to be like in stable form, right? ताकि एक firm clot बन सके, ताकि आप clotting हो सको and आपका जो blood flow है आप उसको रोक सको. So that is fibrin stabilizing factor. थोड़े से बोरिंग, थोड़े से मुश्किल नेम लगेंगे, ठीक है, बट धीरे धीरे हम लोग याद कर लेंगे, मैं याद करा दूंगी. Don't worry about that. ठीक है. So is it clear? Are these 13 names clear to everyone? Yes or no? If yes, give me a very quick thumbs up, everyone. All right. Chalo, note them down and let me know. We discussed about the role of calcium, right? There is a vitamin which is required for synthesis of prothrombin in the liver. Okay, जो prothrombin हमारा factor है, it is produced in the liver, and for that synthesis we required a vitamin, that is vitamin K. So just keep a note here. Just keep a note here that vitamin K is necessary. ठीक है. Vitamin K is necessary for synthesis of prothrombin. Synthesis of prothrombin in the liver. All right, just note it down and note down the name of these other factors as well. So our next heading, we are going to start with the heart, and before that the next heading is going to be circulatory pathways. Have you ever heard about single circulation, incomplete circulation, double circulation? Anyone have any idea about that? बताओ मुझे. ये जब हम सर्कुलेटरी पाथवेज की बात करते हैं तो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज. डबल के बारे में पढ़ा है. ओके, डबल के बारे में पढ़ा है, ठीक है. ऑलराइट, वी हैव टू टाइप ऑफ पाथवेज, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे and closed circulatory pathway. Can anyone tell me what is open and what is closed one? चलो ये तो बता ही सकते हो, ये तो बहुत इजी है. यानी ब्लड से, और क्लोज्ड यानी कि प्रॉपर वेसल्स में. All right, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लड है वो पंप तो हो रहा है, हार्ट इज प्रेजेंट, ऐसा नहीं है. ब्लड इज गेटिंग पंप्ड बाय हार्ट, ठीक है, विच गेट कलेक्टेड इन एन ओपन स्पेस, लाइक देयर इज एन ओपन स्पेस इन द मिडल, जिसको हम साइनसेस बोलते हैं या कैविटीज बोलते हैं, राइट. ओपन साइनसेस इन बॉडी कैविटीज, और तुम्हारा हार्ट पंप करता है सीधा कैविटी में होता है. बेसिकली जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड में फ्लोट कर रहे होते हैं. इट डजंट हैपन इन आवर केस, हमारे केस में कोई भी ऑर्गन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, राइट, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता. सो ओपन सर्कुलेटरी की जब हम बात करेंगे तो इट मींस ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, all right, and flows into open spaces or body cavity. मतलब there is no blood vessels, there is no separation between arterial and venous blood, right? And in closed circulatory system, what happens? Blood is pumped by heart, ठीक है? It always circulates through a closed network of blood vessels, ठीक है? So I can say circulation through closed network of blood vessel. ठीक है, सो दिस इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अब हम बात करते हैं जब ओपन या क्लोज की, तो वर्टिब्रेट्स के पास वी डू नो कि दे हैव मस्कुलर हार्ट, बट द चेंबर ऑफ हार्ट में वैरी. सब में 4 चेंबर ऑफ हार्ट नहीं होते हैं, राइट. तो अगर हम बात करें ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, कोई मुझे बता सकता है फिशेस का कितना चेंबर हार्ट होता है? फिशेस और पाइसेस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ चेंबर इन देयर हार्ट इज, बताओ जल्दी से. Not 3, it's 2, ठीक है. Fishes में they have 2 chambered heart,
हम हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा ना। वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। 2 चेम्बर हार्ट में क्या होगा, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट फिशेस के बाद हम आ जाते हैं एम्फीबियंस पे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस, ऑलराइट, तो एम्फीबियंस में कितना चेम्बर हार्ट होता है एम्फीबियंस में? 3 राइट, एंड रेप्टाइल्स दोनों में, ठीक है, दे ऑल हैव 3 चेम्बर हार्ट। बट मुझे ना कोई एक्सेप्शन सा याद आ रहा है रेप्टाइल का, जिसमें 3 चेम्बर नहीं होते, बता सकते हो मुझे? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, वेरी गुड, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, वो हमारा रिलेटिव हो जाता है, काफी फीचर हमारे जैसे होते हैं, ठीक है। यानी जब 3 चेम्बर की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट 3 चेम्बर्स, सो इन दैट केस वी हैव 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं हमारी यानी मैमल्स की और बर्ड्स की। सो बर्ड्स एंड मैमल्स दे बोथ आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं इनके पास? 4 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, हमारे पास जी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, 2 एंड 2। चलो, इतनी बात समझ में आई सबको? इसमें कोई डाउट? नो मैम। ना, सॉरी। सो अब बात कब कर रहे हैं हम? किसकी? फिशेस की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट फिशेस। कितना चेम्बर्ड हार्ट था फिशेस में? 2 चेम्बर्ड हार्ट है ना, 2 चेम्बर्ड है। तो इसका मतलब इनके केस में पता है क्या होता है, जो हार्ट होता है ना वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैंडल करता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वीनस ब्लड जो होता है, तो एक ही टाइप का ब्लड हार्ट में फ्लो करता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, और क्या बोल सकते हैं हमें, मतलब डीऑक्सीजन और वीनस ब्लड, ठीक है। तो मान लो दिस इज हार्ट, हार्ट में हमारे 2 चेम्बर है उनके, एक एट्री और एक वेंट्रिकल, ठीक है, एट्री और वेंट्रिकल। इसमें अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने बोला, तो इसका मतलब हार्ट जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ठीक है। कहाँ पंप करता है? टू दी गिल्स, टू दी गिल्स पंप करता है। गिल्स क्या करते हैं? CO2 वहां से बाहर रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेता है। हमें पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स इन केस ऑफ फिशेस, लाइक वी हैव लंग्स। तो वहां से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। एंड ये सीधा कहाँ पे सप्लाई कर देता है? बॉडी ऑर्गन्स को। वहां से ऑक्सीजनेट होकर बॉडी ऑर्गन्स से सप्लाई हो जाता है, और वहां से यूटिलाइज होके वापसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे आता है हार्ट के पास, ताकि वो बाहर पंप हो सके। तो इन दिस केस ब्लड हैंडल्स क्या? वीनस ब्लड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीनस हार्ट, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीनस हार्ट। एंड in a single cycle the blood flows through heart only once, एक ही बार फ्लो कर रहा है, फिर दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल, ठीक है। such kind of circulation is called as single circulation। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल सर्कुलेशन। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? yes or no? is it clear? यस मैम। दिव्या, आदिल, शीतल, वर्षा, ऑल राइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। इन एम्फीबियंस कितना चेम्बर्ड हार्ट है? Ma'am, 3. 3 chambered heart, right? So they have 3 chambered heart. अब क्या होगा इन केस ऑफ 3 चेम्बर्ड, यानी 2 एट्रिया, यानी एट्रिया तो 2 हैं लेकिन वेंट्रिकल एक ही है। ऊपर तो 2 डिवीजन है, नीचे एक ही डिवीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो भी वेंट्रिकल में लेफ्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो भी वेंट्रिकल में। यानी हार्ट में ब्लड तो दोनों आ रहे हैं लेकिन उनकी मिक्सिंग हो जा रही है।
एक बार ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की साइकिल, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की साइकिल, और वेंट्रिकल एक ही है। वेंट्रिकल में दोनों ब्लड क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो लेफ्ट हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स और लंग्स, जो राइट वाला सेक्शन होता है इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इन द वेंट्रिकल देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है बिकॉज सिंगल साइकिल में 2 बार ब्लड हार्ट में आ रहा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इनके पास क्या होती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल circulation as there is mixing of blood in ventricles. ठीक है, as there is इतनी बात समझ में आई, yes or no? चलो अब हमारी बात करते हैं। चलो ये तो इजीली बता दो, हमारे केस में क्या होता है इन बर्ड्स एंड मैमल्स। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, 2 बार हार्ट में आता है ब्लड एक सिंगल साइकिल में, तो व्हाट वी हैव डबल सर्कुलेशन। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन को। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. हमने ये सब कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं, एक हमने बेसिक आइडिया देख लिया जी, सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी में सिंगल, किसी में पार्शियल और किसी में डबल। अब हमें बात करनी है किसकी, सिर्फ मैमल की भी नहीं, मैमल में भी ह्यूमन की बात हमें करनी है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज गोइंग टू बी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वी आर ऑलरेडी डन विद द ब्लड पोर्शन ऑफ दिस, राइट, एंड वी नाउ आर गोइंग टू स्टार्ट विद द व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ह्यूमन हार्ट। ठीक है, so when we are talking about human circulatory system, it is also called as blood vascular system. Okay, it is also called as blood vascular system as it is consist of heart, a network of blood vessels, ठीक है, and a blood flowing in these blood vessels. तो हमने blood वाली बात कर ली, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। Have you ever discussed about definitely we studied about all these germ layers, germ cell layers. बता सकते हो कौन कौन सी होती हैं? या चलो ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म पढ़ी है? यस मैम, पढ़ा है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर जिसमें होती है। उन 3 जर्म सेल लेयर के नाम बताओ मुझे फटाफट, जिससे जो एम्ब्रियोनिक जर्म सेल लेयर होते हैं जिससे सारे ऑर्गन्स ओरिजिनेट होते हैं। वेरी गुड। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड Mesoderm. mesoderm. Ectoderm, endoderm and mesoderm. So these are the 3 embryonic germs and layer and which give rise to all inside our body. So definitely few are origin, organs are mesodermal or endodermal. Heart specifically it is mesodermal in origin, ठीक है। So it is mesodermally, it means it arises from the middle layer, जो middle germ cell layer होती है उससे ये arise होता है। So heart is mesodermally derived organ. What is the location of heart? आपका दिल जो होता है वो कहाँ पे located होता है? मतलब बहुत easy सा question है ये तो, अगर पूछ लिया जाता है, and definitely you are carrying your heart with you, so you can give some answers very quickly and very easily. What exactly is the location of your heart? Just tell me that फटाफट से बोलो, इतनी शांति। आदर्श बताओ कहाँ लोकेटेड होता है? कोई नहीं, मिडिल से थोड़ा सा राइट साइड, नहीं सॉरी लेफ्ट साइड, थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट, राइट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड। सो इट इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity between 2 lungs, right? It is situated in the thoracic cavity between 2 lungs. See, you can see this is your right lung, this is your left lung, and in between the heart is situated, and it is slightly tilted towards the left. It is not at the center. यहाँ center में दिल नहीं होता है, थोड़ा सा left में located होता है, ठीक है। What is the size of your heart? जब हम साइज की बात करते हैं, यू कैन सी साइज ऑफ अ फिस्ट, जो आपकी फिस्ट का साइज होता है, ठीक है, जितनी बड़ी आपकी फिस्ट का साइज है उतना ही आपके हार्ट का साइज होगा। सो साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? Now we are going to dissect the heart, right? We are going to dissect the heart. Just imagine you have heart in your front of you. Similarly, like we dissected the kidney, okay? जैसे kidney का dissection किया था, वैसे हम लोग heart का dissection करेंगे. It means we are going to study structure of heart from outside to inside, ठीक है? हम बाहर से पढ़ना शुरू करेंगे और हम अंदर की तरफ मूव करेंगे. Yes or no?
ठीक है, चलो study structure of heart from externally to internally. So firstly, let's talk about the protective covering of heart, right? Okay, if I have heart in my hand here and it is covered by, जैसे gift wrapping होती है, ठीक है, like we are going gift wrap something, तो just similarly heart is wrapped by a protective layer, ठीक है, एक protective layer, देखो white color की दिख रही है, उसके अंदर से ऐसे heart बाहर निकल रहा है, ठीक है, so that protective double walled layer is called as pericardium. The cardium is related to heart. Peri मतलब periphery यानी boundary पे जो उसको protect कर रही है, ठीक है. So heart is protected by a double walled membranous bag that is pericardium. Okay. अब क्या होता है इस pericardium में दो लेयर है, कौन कौन सी है? एक outer layer होगी और एक inner layer होगी, ठीक है. The outer layer and the inner layer. Outer one is fibrous. Outer one is fibrous. Okay. And it is called as parietal. It is called as parietal, ठीक है. Parietal means outer वाली layer जो हो जाएगी, ठीक है. Inner one, the inner one is called as visceral pericardium. Visceral मतलब related to viscera यानी organ, which is in direct contact with the organ is called as visceral pericardium, and another one, the outside of that is called as parietal cardium. Is it clear? इतनी बात समझ में आई? हार्ट से अटैच इनर वाली होगी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, लाइक मानो ये आउटर पेरिकार्डियम है, ये इनर पेरिकार्डियल लेयर है, एंड देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन. व्हाट इज नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड? किसी को आइडिया है कुछ? देखो बड़ा प्यारे प्यारे से नाम है, पेरिकार्डियम यानी पेरिफेरी ऑफ हार्ट, ठीक है. ओके, पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम, और फ्लूइड कैसा हो गया? पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, pericardial fluid. The fluid filled is pericardial fluid. Okay, in this pericardial cavity. इतनी बात समझ में आई? We are done with the outer, ठीक है, the outer protective covering pericardium, ठीक है, outer, inner, parietal, visceral, filled with parietal pericardial fluid, ठीक है. And what is the function of this membrane? This is protective membrane. तो pericardial function of this pericardium is it protect the heart from shock and mechanical injuries, ठीक है, और फ्री मूवमेंट पे अलाउ करता है. तो हमने चलो कवरिंग की बात कर ली, हमने गिफ्ट रैपिंग की बात कर ली है. अब हम बात करेंगे हार्ट के और मेम्ब्रेन्स की, ठीक है, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हमें क्या क्या दिखता है. तो एक बात बताओ, हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? हमें पता है ये बात. ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स, राइट. अगर मैं ऐसे बॉक्स बना रही हूँ, मान लेते हो ऐसा, ठीक है, तो मुझे लेबलिंग बताना जरा. द 4 चेम्बर्स, कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं? ऐसा नहीं होता है हमारा हार्ट, ठीक है, आई एम जस्ट ड्राइंग दिस फॉर आवर कन्वीनियंस. ओके ओके, पहले ये बताओ, ये वाली, दिस इज ए साइड एंड दिस इज बी साइड. व्हिच साइड इज द लेफ्ट वन? A. A, right, this is the left one. Okay, what is the name of upper chamber in heart? Right atrium. Left atrium, right. And what is the name of lower chamber? Left. Left ventricle. Left ventricle, right. So human heart has 4 chambers. The upper smaller one are the atrium, the left and right atrium. तो ये right atrium हो जाएगा, and the lower one are the ventricles, ठीक है. इतना हमें पता है, ठीक है. जो ventricles होते हैं, they are the larger one than the atrium. अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली, क्या क्या एक्सटर्नली किस किस चीजों से सेपरेटेड होते हैं. तो देखो दो चीजें होती हैं. एक तो मान लो ये मेरा हार्ट है, ठीक है, इट इज माय हार्ट लाइक दिस, और मैं जब इसको डाइसेक्ट करूंगी ऐसे, तो मुझे ऐसे सेपरेशन दिखेगा चेम्बर्स के बीच में. एक है ऊपर से, बिकॉज ऊपर से देख के पता चलता है कि देयर इज एट्रियम एंड वेंट्रिकल एंड दे आर सेपरेटेड बाय समथिंग, ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ सेपरेशंस, व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन्स आर प्रेजेंट कि ऊपर से देखने पे तुमको पता चलता है कि ऑल राइट, दिस इज एट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल, ठीक है. उसके बारे में हम बात करेंगे. सो लेट मी राइट हियर. So now we are going to talk about ऊपर से कैसे सेपरेट होते हैं. So the left atria, okay, the left and right atria
एट्रिया यानी लेफ्ट होगा हमारे पास एंड राइट होगा, ठीक है। दे आर सेपरेटेड एक्सटर्नली बाय अ शैलो वर्टिकल ग्रूव, ठीक है। एक शैलो ग्रूव होती है, ऐसा डिप्रेशन होता है जो दोनों को अलग करता है, व्हाट इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल ग्रूव, ठीक है। सो लेफ्ट एंड राइट एट्रिया are separated by interatrial groove. Interatrial groove, ठीक है। So यानी this is atria, the left one. This is sorry, the right one. This is the left one, and this is interatrial groove, जो externally अलग करती है, ठीक है। Atrial groove एक्सटर्नली, ये याद रखना, क्योंकि अंदर से कुछ और अलग करता है उनको, ठीक है। जब इंटरनली देखोगे तो पूरी पूरी दीवारें होंगी जो दिल के आपके अलग अलग चेम्बर्स को अलग करती है, ठीक है। सो इंटरनली, अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वेंट्रिकल्स हियर। तो एक ट्रांसवर्स ग्रूव यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, ऐसे ना, एक ट्रांसवर्स ग्रूव यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, ऑलराइट। इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसवर्स ग्रूव प्रेजेंट होती है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस। इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द एट्रिया, ठीक है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स हमें बहुत बड़े नजर में आते हैं, ऑलराइट। आई विल शो यू द एग्जैक्ट डायग्राम एज वेल। अभी एक्सटर्नली, बाहर से, जैसे फिंगर्स है, यू कैन सी माय फिंगर्स हियर एंड यू कैन सी सच डिप्रेशंस इन मिडल, राइट। सो दिस इज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हार्ट। मान लेते हैं ऊपर में दिस इज एट्रिया एंड लोअर में दिस इज वेंट्रिकल। सो यू कैन सी अ डिप्रेशन इन द मिडल, सो दिस डिप्रेशन इज कोरोनरी सल्कस, ठीक है, जिसमें कुछ फिट हो सकता है, राइट। सिमिलरली दिस इज एट्रिया ऐसे, और इसके बीच में तुम्हें डिप्रेशंस नजर आ रहे हैं। तो एक्सटर्नली दीज डिप्रेशंस और दीज ग्रूव्स आर प्रेजेंट, जिससे आपको बाहर से भी ना नजर आता है क्लियरली, ओके दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यस और नो? Yes, है ना। ma'am. उसके बाद अब जैसे ये वेंट्रिकल्स होंगे हमारे, डाउन दी वेंट्रिकल्स होंगे, वेंट्रिकल्स में भी हमारे कुछ ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल में भी हमारे कुछ ऐसे ना ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ना इन ग्रूव्स में, इन डिप्रेशंस में ना आपके आर्टरीज और ब्लड वेसल्स फिट हो जाते हैं आके, उनको जगह मिल जाती है ना, उनको शेप मिल जाती है, इसमें भी होते हैं। तो कोरोनरी सल्कस के बारे में बात करी, ठीक है। इन बिटवीन वेंट्रिकल्स, बिकॉज हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इन बिटवीन वेंट्रिकल्स, ठीक है, एंटीरियर and posterior interventricular sulcus, ठीक है, प्रेजेंट, ओके। अब इन सल्कस में क्या होता है? इन सल्कस में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है। इन सल्कस में क्या होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज फिट हो जाती हैं आराम से। क्यों? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ही होती है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, ठीक है। तो इससे ये सब क्लियर हो जाती है। चलो लेट मी शो यू सम डायग्राम। So we are studying about the external structure of heart. So what I told you, externally the right and left atria, ठीक है, externally they are separated by interatrial sulcus, and in between atria and ventricle there is coronary sulcus here, and in between the ventricles we have interventricular sulcus, ठीक है, जिसमें तुम्हारी coronary arteries fill होती हैं ताकि पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल सके। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट। अब जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना हार्ट की, तो हमें बहुत सारी एक्सटर्नल आर्टरीज और वेन्स नजर आती हैं हार्ट में, ठीक है। कि हमें चेम्बर्स की बात हमने कर ली है, उसके अलावा बहुत सारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं जो अराइज होते हैं। देखो इन दिस डायग्राम आल्सो यू कैन सी दिस आर्च हियर, ठीक है, यू कैन सी दीज ब्रांचेस हियर, you can see this blood vessel. Lower down there is one more blood vessel here. So it means various chambers receive blood from various parts through a different kind of blood vessels, right? एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो फर्स्टली लेट्स ड्रॉ अगेन वो बॉक्स वाला डायग्राम, ठीक है। तुम्हें याद होगा बहुत छोटी क्लासेस में डायग्राम पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर में लंग्स, नीचे वी हैव ब्लड कैपिलरीज, ताकि तुम्हें नाम याद हो जाए। देन आफ्टर दैट विल ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑन आवर ओन। Okay, so this is chamber of heart, this is left atrium, this is
left ventricle, this is right atrium. All right, Arthur, this is right ventricle. Okay, so the left side receives which kind of blood, oxygenated or deoxygenated? पहले मुझे इतना बताओ. Any idea so far? चलो, यहाँ से ब्लड वेसल आएगी लंग्स. लंग्स में क्या होगा? O2 अंदर आती है, CO2 बाहर चली जाती है. ठीक है, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होके, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होके आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू अ ब्लड वेसल. ऑलराइट, फिर यहाँ से लेफ्ट एंट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल उसको पंप करेगा. वेंट्रिकल उसको पंप करेगा किसमें? इनटू द बॉडी ऑर्गन. यहाँ से बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा. राइट, थ्रू अ ब्लड वेसल. उसके बाद बॉडी ने यूज किया, बॉडी ने उस ऑक्सीजन को यूज किया एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बॉडी उस ऑर्गन को, ऑक्सीजन को यूज करेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करेगी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू कम बैक टू हार्ट. ओके, इट इज गोइंग टू कम बैक टू हार्ट थ्रू अनदर सेट ऑफ कैपिलरी, सॉरी ब्लड वेसल, एंड हार्ट से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल वापसी लंग्स में पुश कर देगा उसको, लाइक दिस. Okay, so we have 4 set of blood vessels here. Now let's name them. The blood vessel which carries blood to each and every organ. Can anyone name this? कौन सी होती है? कोई बता सकता है? Which blood vessel is this? Aorta. नाम सुना है? Yes, ma'am. सबने सुना है. अब याद रखना. ठीक है, ये डायग्राम ऐसा क्यों बता रही हूँ ताकि तुमको लेबलिंग एटलीस्ट याद हो जाए. सीधा हार्ट का डायग्राम बना के पढ़ोगे, लेबलिंग कुछ याद नहीं होगी. ठीक है, तो विद दिस डायग्राम एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मेमोराइज द नेम ऑफ एवरी ब्लड वेसल एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो aorta carries oxygenated blood. It carries oxygenated blood to each and every organ. Then from there, deoxygenated blood from each and every part is taken and reached heart through another set of blood vessel, that is vena cava. Okay, दो नाम तुम लोग पढ़ते हो, superior vena cava, SVC and IVC, that is inferior vena cava. All right, अब यहाँ से deoxygenated blood lungs में जाएगा ताकि वो फिर से purify हो सके through this. This blood vessel is related to lungs, so that's what it is called as pulmonary vein या pulmonary artery. ठीक है, pulmonary vein, pulmonary artery दोनों के नाम सेम है, बस फर्क कितना है? एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, एक डीऑक्सीजनेटेड. सो वो pulmonary artery है, तो ये वाली pulmonary vein हो जाएगी. तो देखो तुमको समझ में आ रहा है पूरा प्रोसीजर. हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, देन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन थ्रू आयोटा इनटू द बॉडी ऑर्गन्स, देन बॉडी ऑर्गन से वेना केवा लेके आती है वापसी टू राइट एट्रियम, देन टू राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से ब्लड वापसी चला जाता है लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. इतनी बात समझ में आई? ये लेबलिंग क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. है ना. अभी हम एक्सटर्नली बात कर रहे हैं, जो आर्टरी वेसल हमें एक्सटर्नली दिख रहे हैं. अभी तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे नहीं गए हैं हार्ट के, सिर्फ बाहर की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, ऑलराइट. तो ये हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा. अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की. अभी तक हमने एक्सटर्नली ही बात की है, अब हम इंटरनल की तरफ जाएंगे कि अंदर में क्या क्या होता है हार्ट के पास. हार्ट में बाहर से हमें डिप्रेशंस नजर आ रहे थे, ग्रूव्स नजर आ रही थी, हमने उनकी बात की. हमें ब्लड वेसल अराइज होती दिख रही थी, हमने उनकी बात की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल, कि इंटरनली क्या क्या होता है. ठीक है, द नेक्स्ट हेडिंग इज गोइंग टू बी, डू वी हैव टाइम? Okay, we don't have much time, so let's not go there, and I would like to tell you some more things here. एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं अभी. ठीक है, ये हमने बात किया हार्ट की वॉल के बारे में. हमने हार्ट की कैविटी के बारे में बात की थी कि हार्ट में जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है हार्ट की, दैट इज पेरिकार्डियम. ओके, हार्ट की जो वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है उसकी हम बात करेंगे. देखो मान लो दिस इज ऐसा कुछ होती है शेप हमारी हार्ट की. ठीक है, दिस इज योर हार्ट. ओके, पूरा भी करेंगे इसको हम कंप्लीट, पूरा अच्छे से डायग्राम बनाएंगे. तो ये जो वॉल होती है हार्ट की, दिस इज द वॉल ऑफ हार्ट, है ना. सबसे बाहर में यहाँ पे हमारे पेरिकार्डियल की लेयर है, दिस इज पेरिकार्डियम जो मैंने बताया तुमको. उसके बाद जो मेरी हार्ट की वॉल होती है ये भी इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 लेयर. ठीक है, सो वॉल ऑफ हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट. ठीक है, 3 walls of heart are there.
किसी को नाम पता है कौन कौन सी वॉल होती है हार्ट में? एनीवन हैज एनी आइडिया? एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, वेरी गुड, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। चली दिमाग चला, क्या बात है, वेरी गुड, एंडोकार्डियम। ठीक है, सो वी हैव थ्री लेयर या 3 वॉल्स हार्ट की, एपी, मायो एंड एंडो। तो एपी हो जाएगी तुम्हारी दी आउटर मोस्ट वन, एपी इज दी आउटर मोस्ट वन। It is very thin. Outer one is thin. It is made up of simple squamous. I'm so sorry. It is made up of simple squamous epithelium. ठीक है, मायोकार्डियम, मायो मतलब, किसी को मायो का मतलब पता है? मायो मतलब मसल। So it is muscular layer, okay? So it is composed of cardiac muscles. Right. कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई होती है। कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू में, यस और नो? यस स्ट्राइटेड होती है, ब्रांच्ड होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोकार्डियम, यानी सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है। व्हाट इज एंडो? इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट भी सिंपल से बनी है, ये भी हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, जो आपकी एंडोथीलियम होती है, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये क्या आपकी एंडोडर्मल है, और एपिकार्डियम जो आपकी होती है दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है ये बताओ? ओरिजिन ऑफ हार्ट मेसोडर्मल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, पहले हम सर्कुलेटरी पाथवेज, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, देन आफ्टर दैट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी इंटरनल की बात हमने नहीं की है। इज इट क्लियर? साइन नोट कैसे? Yes, ma'am. ऑलराइट, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी अंदर में हमें हार्ट कैसे कैसे दिखता है। विल ड्रॉ हार्ट प्रॉपर डायग्राम, ये बॉक्स ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग प्रॉपर। टिल देन व्हाट यू नीड टू डू, तब तक तुम लोगों को क्या करना है? तब तक तुम लोगों को ये नेम्स याद करने हैं। आई विल आस्क इन द नेक्स्ट क्लास कौन से चेंबर से कौन सी ब्लड वेसल कैरी करती है, बिकॉज दिस इज एनाटॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सेम चीज जो मैंने काउंटर करंट के लिए तुमको बोली थी, है ना, कि मैकेनिज्म तभी तुमको समझ में आएगा जब तुमको एनाटॉमिकल नेम्स के बारे में पता होगा। तुम्हें नाम ही नहीं याद तो कैसे पढ़ोगे, राइट? तो प्लीज कल की क्लास तक एटलीस्ट ये सब याद रख लेना। ये तुम्हारी ऑक्सीजनेटेड साइड होती है और ये तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड साइड होती है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस चलो ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ऑलराइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू एंड कोई भी डाउट होता है तो डोंट हेजिटेट टू पिंग मी। ऑलराइट, Sure. चलो बाय बाय। मैम। जय